Good morning to all. We are going to start the session in just 4 5 minutes. Okay.
Good morning. Good morning. Am I audible? Yes, ma'am, audible. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, one and all. The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change, according to Carl Rogers. If you're planning for a year, so rise. If you're planning for a decade, plant trees. If you're planning for a lifetime, educate people. There are many ways you can make an impact on the world, but there is no greater impact that you can make than spreading education and empowering people who will empower and teach people who in turn will empower and teach more people. This task has been accomplished by our resource persons, Dr. Ajay Datta, Professor Harpreet Kaur, Professor Neha, Professor Kamini. They have taught the teachers who are going to teach their students. They have really broadened our perspective towards ICT tools, IQAC, and Department of Computer Science and Applications, BAM Khalsa College, Garshankar, are here with the last session of Super Faculty Development Program. This 5 days FTP has been an exciting journey of ICT tools where Dr. Ajay Datta, Professor Harpreet Kaur, Professor Neha, Professor Kamini have been driving the engine of knowledge. This FDP has ignited the urge to perceive, plan, and make quality posters, certificates, logos, PPTs, and also manage Google Classroom, which is the need of our. Thanks to these excellent, engaging, and informative sessions, we have kept very sensitive topic for today's session, that is cyber security. Dr. Ajay Datta will be the resource person and he will be delivering on cyber security as well as on PDF file operations. Now I request Dr. Ajay Datta to start today's session. Dr. Ajay Datta, Department of Computer Science and Applications, BAM Khalsa College, Gadshankar. Sir, please, over to you. Good morning, respected Principal Sir, Coordinator Sir, and Organizing Secretary Dr. Janki Agarwal Ma'am, and all faculty members. Sir, Today please on your camera. Sir, please on your camera, please. I am going to deliver my lecture on cyber security. One time, ma'am, one thing is possible on the camera. Otherwise, I can share my presentation. It's fine, sir. Yes, sir, no problem. Yes. Yeah. First, if we can defeat them sitting at home, no one need to fight with tanks and guns. So at present scenario, we are watching many cyber crime cases. We are also using internet, but the coin two side. One is the positive, second one is disadvantages. So disadvantages is cyber crime. If we talk about the benefits of internet, then we are using ICT in education, banking system, and some military organization applications. So in this presentation, I have covered
introduction, definition, cyber threat, evolutions, category of cyber crime, types of cyber crime, security tips, and conclusion. First, internet. The internet is in India is growing rapidly. It has gives rise to new opportunity in every field. बेसिकली आईसीटी से कोविड के टाइम में हमारे पास जो मोस्टली हमने यूज किया है इसका वो है कोविड के टाइम पर, क्योंकि पहले तो होता था कि हम इंस्टीट्यूशन में भी कहते थे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेट मोबाइल ना यूज करें, बट ड्यू टू कोविड अब हमारी सारी एजुकेशन ही आईसीटी के ऊपर बेस्ड है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की बात करें, पुलिस मैनेजमेंट सिस्टम, सभी आईसीटी बेस्ड है। तो इसका जो बेनिफिट्स हैं वो तो अभी यानी कि बताने लायक नहीं है, अभी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, हर एक फील्ड में इसके बेनिफिट्स हैं। तो अगर इसकी कुछ कॉइन की जो सेकंड साइड है वो है इलीगल एक्टिविटीज, जो साइबर के थ्रू क्राइम हो रहा है, वो नेक्स्ट है जो इसका सेकंड है। नेट चलाना तो सभी जानते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सभी यूज कर रहे हैं, बट उसको कैसे हम सिक्योरली यूज करें, किस तरह से हम हैकिंग से बचें, उसकी जो एजुकेशन है वो मोस्टली हमें नहीं मिल पाती। हम ये देखते हैं भी एटीएम को कैसे यूज करना है, नेट बैंकिंग ले ली, तो उसके लिए कौन कौन से टिप्स हैं उसको आज हम देखेंगे। फर्स्ट हम समझेंगे भी इंटरनेट के क्राइम कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं। लाइक एज जैसे सिंपल फ्रॉड होते थे इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत जितने भी क्राइम्स थे, उसी तरह से जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट जो 2000 आईटी एक्ट आया था उसके बिहाफ पर सभी के आप केसेस कर सकते हैं जो भी आपको क्राइम हुआ है। साइबर स्पेस में भी 4 टाइप्स हैं। देखिए इसमें भी जैसे फिजिकल स्पेस में कोई क्राइम होता है उसी तरह से साइबर में भी एक तो प्लेस रहती है भी कहां पर क्राइम हुआ। सेकंड होता है डिस्टेंस, किस एरिया से जो क्राइम हुआ है आपको कहां से हुआ, कितने डिस्टेंस से आपको इफेक्ट किया, जिस भी क्राइम ने किया है वो उसने किस साइज का किया है, उसने आपका कितना डेटा या कितना आपको फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचाया है, इस चीज का भी रिकॉर्ड रहता है। रूट किस रूट से हुआ, जैसे अगर बात करें तो मैनुअल जो आजकल ट्रेडिशनल क्राइम होते थे उसमें होता था भी ये इस रूट से जो भी क्रिमिनल है वो आया, इस वे से आया, उसको भाई सीसीटीवी चेक किया जाता था। तो इसमें भी रूट रहता है, साइबर क्राइम में भी किस रूट से जो क्राइम हुआ है, किस रूट से हुआ है, किस आईपी एड्रेस से हुआ। यानी प्लेस की अगर बात करें तो किस लोकेशन पर हुआ, कौन सा आईपी इफेक्ट हुआ है, कौन सा मोबाइल या कौन सी वेबसाइट इफेक्ट हुई है। डिस्टेंस की बात करें तो किस एरिया से उसको किया, किस रूट के थ्रू किया है, कौन सा नेटवर्क था जिसके थ्रू उसको किया। साइज, फाइनेंशियली कितना नुकसान हुआ है, डेटाबेस कितना ऑर्गेनाइजेशन का खराब हुआ है। तो उसके बेस के ऊपर अगर कोई अगर कोर्ट ने भी कुछ उसको करना है, कुछ पे करना है कि उसको कुछ जुर्माना लगाना है, तो उसके लिए भी उन्होंने रखा होता है भी इसका क्या साइज क्या रहा जो क्राइम हुआ। जो फर्स्ट साइबर का केस था साइबर क्राइम का 1820 में किया गया था लुक आफ्टर उसको, यानी कि जो केस हुआ था 1820 में हुआ था इन वर्ल्ड। तो डिफरेंट वायरसेस, ट्रोजन, फिशिंग, टीओएस टैग, तो डिफरेंट हैं जिनकी हम अगर बात करें तो हिस्ट्री वाइज डिफरेंट टैग्स आते रहे। जैसे आजकल रैंसमवेयर बहुत चला, तो डिफरेंट है। इसके अंदर साइबर क्राइम में हमारे पास बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं जिसके बेस के ऊपर हम क्राइम्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन। अगेंस्ट पर्सन जो किसी एक सिंपल आइडेंटिटी, एक पर्सन के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है। सेकंड होता है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर उसने किसी की प्रॉपर्टी को यानी उसको फाइनेंशियली उसका डेटा करप्ट किया है। थर्ड वन इज साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगेंस्ट गवर्नमेंट में रहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, किसी सरकार, किसी नेशन के खिलाफ, किसी अनदर कंट्री ने अगर किसी तरह से क्राइम किया। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, इसमें देखना रहता है भी कौन सी कैटेगरी में हमारे साथ क्राइम हुआ अगर हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी जो है जिसमें हम पर्सनल मानते हैं कि साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन। अब इसमें है कि हो सकता है कि उसमें वेरियस काइंड्स हैं, जैसे हरासमेंट कैन
do occur in cyberspace or through the use of cyberspace. Harassment can be sexual, racial, religious or others. किसी भी तरह से किसी को हरास करना ये फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है. नेक्स्ट सेकंड वन है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर वेंडलिज्म, जिसमें कि किसी का डेटा करप्ट करना, किसी का डेटा कंप्यूटर से चोरी करना, विदाउट परमिशन किसी का सिस्टम एक्सेस करना और उसमें से कुछ डेटा को, कुछ फाइल्स को कॉपी कर लेना, जिसको हम अनऑथोराइज एक्सेस भी बोलते हैं. अनऑथोराइज एक्सेस के थ्रू किसी के सिस्टम से डेटा चुराना है. बेसिकली ये यूज होता है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स की लेने के लिए या फिर बैंक की इंफॉर्मेशन लेने के लिए. आपसे आपके एटीएम डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ली, तो ये सभी सेकंड कैटेगरी में आता है. थर्ड कैटेगरी है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को हैक करना. ये थर्ड कैटेगरी में है, जिससे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी यानी कि उसका जो साइबर स्पेस है उसको डेटा को फेच किया जाता है by using unauthorized access. एक सिंपल क्राइम होता था, उसी तरह से आजकल लैपटॉप के थ्रू क्राइम हो रहा है. सिंपल जिस तरह से पहले काम होता था, स्नैचिंग्स होती थी, उसी तरह से आजकल इंटरनेट के ऊपर हो रही है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि हम अपनी जो भी रिपोर्ट है, एफआरआई है, वो इसलिए नहीं इसमें दर्ज करते कि हमें लगता है भी इसके लिए हमारे पास प्रूफ नहीं है. जो फिजिकली होता था उसमें लगता था कि उसमें हमारे पास है, रिकॉर्ड है, कोई सीसीटीवी है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं. बट साइबर में कई बार ऐसे लगता है कि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हो भी गया क्राइम बट फिर भी पता नहीं लगता भी हमारे साथ क्राइम हो चुका है. काफी बात पता लगता है, लेट पता लगता है. तो इसमें भी हमारे पास, जैसे पहले बताया, इसमें भी रूट है फिजिकली, जैसे होता है स्पेस, कहाँ साइज, सभी कुछ होता है. तो इसमें फुल पॉइंट्स है कि आप भी इसको एज अ आईटी एक्ट के अंदर इसको अपने एफआरआई आप सबमिट कर सकते हैं. इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स है समझने होंगे. जब भी साइबर क्राइम होता है इसमें बेसिकली हमारी ही मिस्टेक से होता है. ये कभी भी कोई अदर पर्सन हमारी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता विदाउट कि हमने अपनी परमिशन के उसको कुछ दिया हो. जाने या अनजाने में हम अपनी ही कुछ डेटास या कुछ गलत वेबसाइट्स को ओपन कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और बाद में उसी इंफॉर्मेशन का वो बेनिफिट उठाकर जो भी क्रिमिनल्स हैं उसी से वो हैकिंग करते हैं. तो कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट है सर्च इंजन. सर्च इंजन इज एन इंटरनेट टूल दैट लोकेट वेब पेजेस एंड सोर्ट्स देम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कीवर्ड्स. देखिए सर्च इंजन सभी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, अल्टा विस्टा, सो काफी सारे सर्च इंजन है. अगर मैं कोई भी बात करूं कि अगर हमने देखना हो कि बेस्ट कॉलेज इन पंजाब अगर सर्च करना है तो हम जस्ट गूगल में जाकर सर्च करते हैं, जो भी रिजल्ट्स निकल कर आते हैं हम टॉप 5 रिजल्ट पर मोस्टली जो हो रहता है कि उसके ऊपर क्लिक करके हम समझते हैं कि यही वाले बेस्ट टॉप कॉलेज होंगे जो भी गूगल ने रिजल्ट दे दिया. ऐसा ही है ना जी, जब भी हमें कुछ पूछना होता है, हमें लगा भी एसबीआई ने कोई नई स्कीम स्टार्ट की, हम नेट पे सर्च करते हैं ऑनलाइन एसबीआई न्यू स्कीम्स, किसी भी बैंक्स की, इंस्टीट्यूशंस की या कोविड की इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम कभी भी यूआरएल के ऊपर नहीं मोस्टली जाते. कोई कहीं है जो यूआरएल देखते हैं, मोस्टली लोग 95% गूगल के ऊपर ही, गूगल से ही जो भी डेटा आता है उसी को ऑथेंटिक मानते हैं. तो जो गूगल की इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक नहीं है, उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सर्च इंजन के थ्रू आ रही है. जिसने भी अपनी ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं एसईओ, अच्छे से एसईओ की होगी उसका रिजल्ट टॉप पर आएगा. गूगल किसी की ऑथेंटिसिटी नहीं चेक करता किसी भी डेटा की, उसका काम है जस्ट एसईओ के बेस के ऊपर रैंक करवाना, किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पैरामीटर्स रखे हुए हैं, ऑथेंटिसिटी नहीं है. तो इससे क्या होता है कि इससे हम जो हमारे पास ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं, किसी बैंक की, रेलवे की जॉब्स निकली तो क्या होता है कि रेलवे की जॉब्स में, या अभी पंजाब पुलिस में भी हुआ था, भी किसी ने एक डुप्लीकेट फेक वेबसाइट बना दी और उन्होंने लॉन्च कर दी. उससे क्या हुआ, लोगों ने नेट के ऊपर सर्च किया, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब पुलिस वैकेंसीज, तो जो फर्स्ट वेबसाइट आई उसके ऊपर उन्होंने पेमेंट भी कर दी. तो जो पेमेंट थी वो किसी रॉन्ग वेबसाइट के अंदर चलेगी
और उनके पास आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन थी वो भी आपने अपने आप ही पास आउट कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो सर्च इंजन है वो एक हमें जस्ट डेटा प्रोवाइड कर रहा है, उसमें से ऑथेंटिसिटी चेक करनी वो हमारा काम है, कौन सा सोर्स ऑथेंटिक है। तो वेरियस डेटा सर्च इंजन हैं, जैसे गूगल है, ऐसे ही याहू, अल्टा विस्टा, बिंग, आस्क, ये सभी सर्च इंजन है। नेक्स्ट है अब आइडेंटिफाई कैसे करना है कि दिस वन इज अ ओरिजिनल वेबसाइट और नॉट। तो जो मोस्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ऑथेंटिक आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो है .gov, .gov.in, .edu.net, .edu.in। ये जितने भी डोमेन नेम्स हैं इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी आइडेंटिटी पर जो भी प्रूफ होगा उसको सबमिट करके फिर उनको डोमेन नेम मिलता है। और जो .com है, .in है, .org है, ये कोई भी परचेज कर सकता है। इसके लिए आपको कुछ अपना आईडी प्रूफ नहीं देना होता, जस्ट आपको .com के लिए जो पेमेंट है इसकी ईयरली पेमेंट दो और आप डोमेन नेम कोई भी परचेज कर सकता है। तो इसमें हमें देखना है कि किसका .gov लिखा है, .net लिखा है, .edu लिखा है, ये ऑथेंटिक सोर्सेस है। उसकी एक्सटेंशन हमें देखनी है। अब एक ही वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल एक ही वेबसाइट है पंजाब यूनिवर्सिटी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी .com कोई ले सकता है, पंजाब यूनिवर्सिटी .net अनदर पर्सन परचेज कर सकता है, पंजाब यूनिवर्सिटी एरो अनदर पर्सन, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ डोमेन नेम्स की एक्सटेंशन अवेलेबल्स हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट कौन सा डोमेन नेम है। जैसे अभी एक डोमेन नेम है www.bamkc.info, तो ये अपने कॉलेज की वेबसाइट का डोमेन नेम। हाँ जी, आप बता सकते हैं कि ये ठीक है, ऑथेंटिक है या नहीं है? No, sir, it's not. ओके, इसमें मिस्टेक क्या है? हाँ जी, इसमें सर edu.in लगना चाहिए था ना, जो उन्होंने परचेज किया है। हाँ Domain बिल्कुल name। ठीक, बिल्कुल ठीक है। जो कॉलेज की हमारी एक्सटेंशन है उसकी है .bamkc.edu.in, बट इसमें डोमेन नेम यूज हुआ है .info। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन कौन सी है। अब बैंकिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो एक्सटेंशन परचेज कर लेते हैं कोई भी, और साथ में जो मेन डोमेन नेम है उसको वही रहने देते हैं। जैसे facebook.info रख दिया, तो लगता है ऐसा ही है कि जो मेल आई है हमें ऑथेंटिक सोर्स से आई है। तो इस चीज का ध्यान रखना है भी एक्सटेंशन कौन सी है। अगर इसको ही आप देख लेंगे तो बहुत सारे साइबर के केसेस नहीं होंगे जो बैंकिंग के मोस्टली होते हैं। तो इससे नेक्स्ट होता है हमारा पेज index.html, ये हमारा पेज नेम है, ये हमारा डोमेन नेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के साथ कोई क्राइम हो भी जाए तो हमें अपना डोमेन का जो भी नेम था जिससे हमें लगता है भी इस डोमेन से हुआ है उस डोमेन को रिकॉर्ड करके रखना है। जैसे स्टार्टिंग में बताया ना भी प्लेस होती है कहाँ से हुआ, तो उसके लिए जो बेसिक सोर्स होता है हमें पता लगता है भी इस डोमेन से अटैक हुआ है हमारे ऊपर, हमने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की इस डोमेन के ऊपर की। जी, डिफरेंट टैग्स हैं जिसमें फर्स्ट है, एक तो है हैकिंग। हैकिंग बेसिकली क्या है, सभी टर्म्स को इसको समझते भी होंगे। हैकिंग में क्या है, बेसिकली हमारा जो पासवर्ड्स है उसको हैक किया जाता है। वो सोशल मीडिया का पासवर्ड भी हो सकता है, वेबसाइट का हो सकता है जहां हमने वेबसाइट होस्ट की है, ईमेल आईडी हो सकती है, हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड हो, ये सभी आता है हैकिंग में। जिससे भी हमारा अगर कोई पासवर्ड लेकर किसी ने अगर अनऑथेंटिक वे से उसको सेस किया है, ये सभी कवर होगा अंडर हैकिंग। तो ये हैकिंग का पार्ट है। इसमें बेसिकली यही रहता है कि किसी की इमेज को खराब करना, हैकिंग करके उसका यूजर नेम पासवर्ड किसी ने भी अनऑथराइज वे से उसको असेस कर लिया, उसके बाद उसकी इमेज को कैसे डाउन किया जाए, उसकी अगेंस्ट उससे कुछ पैसे की डिमांड की जाए भी, आप अपना इतने अमाउंट तो हम आपको आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है जो नया रखा हुआ है वो आपको देंगे। तो ये सारी
या उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज खराब करनी, या पर्सन की या ऑर्गेनाइजेशन की, ये सारे मोटिव्स रहते हैं हैकिंग। नेक्स्ट होता है साइबर स्केटिंग। अब इसके अंदर आता है कि किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के नाम के ऊपर डोमेन लेकर उसको यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेलिब्रिटीज है, उसके नेम के ऊपर क्या करते हैं लोग, अपना एक डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं, या यूट्यूब के ऊपर चैनल, फेसबुक के ऊपर किसी का पेज क्रिएट कर दिया। ये सभी साइबर स्केटिंग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि किसी भी अदर पर्सन का, पर्सनैलिटी का आपने डोमेन नेम ले लिया और उसके ऊपर उसी की स्टोरीज चला दी, यानी पब्लिक को ये लगे कि ये जो पेज है ये एक पर्सनैलिटी चला रही है, किसी पीएम के नेम के ऊपर किसी ने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर दी और उनकी डेटा उनके ही रिलेटेड डाल दिया। तो ये सारा साइबर स्केटिंग के अंतर्गत आता है। इसमें भी फाइन है, और काफी सारे केसेस इस तरह के आते हैं कि किसी ने किसी सिंगर के नेम पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम के ऊपर किसी ने डोमेन नेम परचेज कर लिया और वेबसाइट स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट है फिशिंग अटैक। 90% से अबव केसेस जो हैं इंडिया में, अगर आप नेट पर भी देखें, एज पर जो मिनिस्ट्री का भी डेटा है, फिशिंग अटैक इंडिया में मोस्टली होता है। और मोस्टली लोग समझ नहीं पाते कि हमने अपनी इसमें तो इंफॉर्मेशन भी दे दी और पता नहीं लगता भी कब दी है, और हमारा जो डेटा था, हमारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी हमारे बैंक से, वो चले भी गए, अकाउंट से पैसे चले गए। ये सारा होता है फिशिंग अटैक। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। फिशिंग इज जस्ट वन ऑफ द मेनी फ्रॉड्स ऑफ द इंटरनेट ट्राइंग टू फूल पीपल इनटू पार्टिंग विद देयर मनी. Phishing refers to the receipt of unsolicited emails by customer or financial institutions requesting them to enter their username, password or other personal information to access their account for some reason. अब इसमें क्या है, इसमें ये देखिए, अब फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग में सेम वेबसाइट क्रिएट की जाती है। हाँ जी, ये कौन सी वेबसाइट है? फेसबुक। हाँ जी, ये फेसबुक का अकाउंट है। यस सर। ये फेसबुक का अकाउंट है ना। तो ये देखिए, अभी ये आईडी पर क्या होता है कि इस तरह से फिशिंग में होता क्या, पहले मैं इसको आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कि फेसबुक की इस तरह से रिक्वेस्ट आती है ईमेल के ऊपर, उस पे लिखा होता है कि प्लीज चेंज योर पासवर्ड, योर अकाउंट एक्सेस बाय सम अनऑथराइज्ड पर्सन। सो या फिर सेकंड भी होता है कि आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, सेम वैसे ही फेसबुक के बने हुए, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट के ऊपर आता है लिखा हुआ कन्फर्म फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो इसके ऊपर आप जैसे माउस रखेंगे आप देखेंगे कि इसके अंदर यूआरएल कोई और है। फेसबुक का पेज सेम बना हुआ है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, पेज कोई और है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे मांगेगा आपका यूजर नेम पासवर्ड। आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया, जैसे ही आपने एंटर किया जो आपकी इंफॉर्मेशन थी, अब वो फेसबुक के पास नहीं गई, वो किसके पास गई है? fashion-blog2.com। अब ये देखिए, इसको कभी भी जब आपको गूगल के ऊपर कोई मेल आए तो उसको अगर आप ओपन कर ही रहे हैं, आपको लगा भी ये फेसबुक की आई है, ईमेल आई हुई है, तो एक तो आप उसकी एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, david@aol.com। तो अब इसकी जो ईमेल आई है इसकी एक्सटेंशन कोई और है। ये फेसबुक की अगर होती तो फेसबुक की अपनी एक्सटेंशन होनी थी। यहाँ पर @facebook.com, जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं ना @bamkc.edu.in, तो वो फर्स्ट तो हमें ईमेल आईडी से ही कंफर्म हो गया कि ये जो मेल आई हुई थी ये किसी ने फिशिंग अटैक की है। नेक्स्ट है, आपने जैसे इंफॉर्मेशन फिल ओपन किया इसको कंफर्म के लिए, तो आपको आ गया फेसबुक लॉगिन। ये देखिए, सेम पेज वैसे ही बना हुआ है जैसे आपका फेसबुक का पेज है। अगर आप ऊपर देखेंगे यूआरएल में, तो इसका जो यूआरएल है वो है समथिंग रॉन्ग, lol.a.gp। तो ये जो डोमेन नेम है ये अलग है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो ठीक है, अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं फिल की, अगर कर दी तो क्या हुआ, आपकी इंफॉर्मेशन जो है तुरंत
फेसबुक की, सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन किसी के पास चलेगी और वहां से आजकल जो क्राइम्स हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, किसी का अकाउंट में से ही पैसे मांग लिए जाते हैं। अभी इतने आप अपनी ही फ्रेंड सर्कल में से भी, ये मुझे पैसे चाहिए, तो उसको भी लगता है कि ये एक जेन्युइन अकाउंट है, मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, इसने मांगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को गलत रिक्वेस्ट, किसी को गलत मैसेज सेंड कर दिया, इसमें अकाउंट आप ही का यूज हो रहा है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसलिए सोशल मीडिया को जो यूज है उसको बड़े ही सोच समझ के, जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया सेवी होना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन भी कितनी आपने सोशल मीडिया पे रखनी है, कितनी रही रखनी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है सेम फिशिंग अटैक जो है, ये फाइनेंशियल कैसे होता है। पेपाल है, पेपाल के ऊपर आपके पूरे बैंक की अकाउंट इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं, इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं लाइक यूपीआई। ठीक है, तो इसमें क्या, पेपाल से भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि डुप्लीकेट अकाउंट क्रिएट कर लिया जाता है, paypal.hilfservices.com, तो ये सब डोमेन क्रिएट कर लिया, ये होता है सब डोमेन। सेम वैसे ही नाम रख देना, फेसबुक डॉट, जैसे फेसबुक डॉट समथिंग डॉट कॉम, तो ये सब डोमेन रख दिया, किसी को यही लगे कि ये फेसबुक की रिक्वेस्ट आई हुई है। इसी तरह से पेपाल की, अगर इसमें किसी ने भी अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी, अपना क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन थी वो बहुत ही सिंपल वे से आपने पास आउट कर दी क्रिमिनल को, अब वो आपके अकाउंट में से पैसे जो भी है निकाल सकता है। तो इसके लिए जो सबसे पहले मैंने बताया था फिशिंग अटैक से बचने का, यही है कि आपको यूआरएल की पहचान होनी चाहिए भी, कौन सा यूआरएल ओरिजिनल है, कौन सा नहीं। जब भी आप बैंकिंग की वेबसाइट अपनी ओपन करें, जैसे एसबीआई की, कैनरा की, कोई भी बैंक है, तो उसका आप ध्यान से देखिए, उसकी जो ओरिजिनल यूआरएल है। आप बैंक से भी पूछ सकते हैं कि आपका यूआरएल कौन सा है, क्योंकि काफी सारे बैंक्स के डुप्लीकेट यूआरएल्स बने होते हैं, और वहीं पर आप ऑनलाइन बैंकिंग पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं। नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। Cyber stalking is use of the internet or other electronic means to stalk someone. This term is used interchangeably with online harassment and online abuse. Stalking generally involves harassing or threatening behavior than an individual engage in repeatedly, such as following a person. अब इसमें क्या है कि जिस तरह से फर्स्ट पॉइंट बताया था कि साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, इसमें किसी को कॉल के थ्रू किसी को कुछ हरास करना, किसी को सेक्सुअल हरासमेंट करना, ये सभी साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है। और ये क्राइम है इंडिया में, ये क्राइम है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है उसमें इसकी भी सजा है। अगर कोई आपको कॉल करता है तो ये नहीं कि आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो इसका कुछ नहीं है, आप अगर उसकी कंप्लेन करेंगे तो ये साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है विशिंग। अब विशिंग अटैक जो है ये भी सबसे पॉपुलर है हमारे यहाँ पर, फिशिंग के बाद विशिंग। अब इसमें क्या किया जाता है, विशिंग इज अ क्रिमिनल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग एंड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टू गेन एक्सेस to private, personal and financial information from the public for the purpose of financial reward. The term is a combination of voice and phishing. Phishing exploits the public trust in landline telephone service. Phishing is typically used to steal credit card number or other information used in identity theft scheme from individuals. अब इसमें क्या है विशिंग अटैक में, ये देखिए, एक तो वॉइस प्लस फिशिंग। फिशिंग क्या था, डुप्लीकेट क्रिएट करना, किसी का सेम टू सेम एक अनदर कॉपी उसकी क्रिएट कर लेनी, जैसे जेरोक्स कॉपी होती है वैसे ही एक वेबसाइट क्रिएट कर लेनी। अब वॉइस के ऊपर वॉइस प्लस फिशिंग। अब इसमें क्या है, इस अटैक में किसी को फोन आता है, मोस्टली हमें भी आए होंगे इस तरह के भी, आपका किसी तरह का गिफ्ट निकला है, आपके रिवार्ड पॉइंट्स हो गए, आप अपना अकाउंट नंबर दें, आपको एक ओटीपी आया होगा, अपना ओटीपी शेयर करें, पहले आपसे नेम पूछेंगे, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। सो सोशल इंजीनियरिंग इसमें यूज करते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो आपसे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, आपके अकाउंट से पैसे चले गए, फिर आपको लगता है भी अच्छा मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए,
आपको मैसेज आ गया। तो ये आपके मोबाइल से ही आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अभी आपका कार्ड नंबर क्या है, हम बैंक से बोल रहे हैं, आते हैं ना जी आजकल बहुत सारे मैसेज आते हैं, बैंक्स के भी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं कि अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन आप किसी को ना दें, चाहे कोई भी, आप अपना कार्ड किसी के साथ शेयर ना करें। उसके ऊपर सीसीवी नंबर है, आपका अकाउंट नंबर है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे बड़े प्यार से। उसके बाद अगर ओटीपी आया उसका भी वो क्लोन तैयार कर लेते हैं आपका नंबर पूछ के, तो उसके बेस से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं। तो ये आता है विशिंग अटैक में। ईमेल स्पूफिंग। अब ईमेल स्पूफिंग मोस्टली ये स्टूडेंट्स लेवल के या जो प्रोफेशनल हैकर्स नहीं है वो यूज करते हैं ईमेल स्पूफिंग टेक्निक। और इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, इसमें तो जो भी जिसको ईमेल या इंटरनेट चलाना आता है वो इस क्राइम को कर देते हैं। क्या करते हैं अभी, वो एक ईमेल ड्राफ्ट करते हैं बड़े अच्छे से, और आपको एक लिंक शेयर कर देंगे भी आप अपना पासवर्ड चेंज करें, बड़े अच्छे से एक ईमेल लिखी होगी उसमें ईमेल के। तो इसमें वो क्या करेंगे, अपने बैंक का अकाउंट उन्होंने शेयर कर दिया, ये देखिए axisbank.com फॉर एग्जांपल, axisbank.com डोमेन इनका है, ओरिजिनल है, बट इसके ऊपर क्या होता है कि इन्होंने जब ये लिखा है axisbank.com, ये लिंक के बैक साइड के ऊपर कोई और लिंक होगा, इसके ऊपर इनकी पर्सनल अपनी कोई वेबसाइट्स होगी हैकर्स की, तो इसके थ्रू ये आपसे इंफॉर्मेशन मांगे। तो जब भी आप क्लिक करें ये ना देखें कि बस यहां पर लिंक लिखा है तो ठीक है, आपने देखना जो यूआरएल में ओपन हो रहा है। तो यूआरएल में इंफॉर्मेशन, जो भी यूआरएल की यही वाला यूआरएल में ओपन हो रहा है। कई बार क्या होता है, आप जीमेल भी आप कुछ लिखते हैं या ब्लॉग में, तो पूछता है कि यूआरएल का टाइटल क्या देना है, तो वो क्या करते हैं, वो टाइटल में ओरिजिनल वेब बैंक की वेबसाइट को मेंशन कर देते हैं। तो इसके बचने का एक ही तरीका है भी, आप यूआरएल को अच्छे से देखें। नेक्स्ट है जो मैंने बताया कि ज्यादा इसमें चाहिए नहीं एजुकेटेड, वो क्या करते हैं ना भी, आपसे एक मेल आपको ड्राफ्ट करके सेंड की, ये देखिए अभी इन्होंने एक मेल आपको सेंड की, किसी अकाउंट से आई, तो इसमें लिखा हुआ है कि आप अपना नेम, आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ अपडेट ये शेयर करिए याहू के साथ, तो आपकी इंफॉर्मेशन हम अपडेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी याहू के पास नहीं गई, ना ही वो मांग रहा है याहू आपसे, आपकी इंफॉर्मेशन जिसने भी आपको मेल की थी हैकर्स ने, उसने आपकी इंफॉर्मेशन को आपसे चुरा लिया। तो ये तो थे जो वेज हैं जिसके थ्रू एक जो सिंपल पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसको थ्रेट पहुंचते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी टिप्स। इसके सिक्योर हम अपने आप को कैसे सिक्योर कैसे रख सकते हैं। अभी ये तो था जी कि क्रिमिनल की क्या क्या टाइप्स होती हैं, वो कैसे कैसे क्राइम्स करता है साइबर में, कैसे कैसे क्राइम्स कर। तो अब है भी हम इसको सिक्योर अपने आप को कैसे रख सकें। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, अनइंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है कि हमने अपने हमें पता होना चाहिए भी, हमारे जैसे होता है ना भी घर में क्या क्या है, हमें अपनी पूरा पता होता है भी, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है इसमें, कुछ हमें कोई ऐसा तो नहीं लग रहा भी कोई अलग से चीज ऐसी। हमें अपना कंप्यूटर का भी देखना होता है या लैपटॉप का, मोबाइल का, कौन सी एप्स अननेसेसरी तो नहीं इंस्टॉल होगी हमारे मोबाइल में। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जब हम कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो अनवांटेड जिसको या अननेसेसरी हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं, उसको तुरंत डिलीट करना, उसको अनइंस्टॉल करना। कंप्यूटर में करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल पैनल में जाकर उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसको चेक करना कंट्रोल पैनल में। मैं एक बार इसका एक आपको डेमोस्ट्रेशन भी दे देता हूं, इसको कैसे चेक करना है। आप अपने यहाँ विंडो में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए स्टार्ट बॉक्स, यहाँ पर आपने टाइप करना है कंट्रोल पैनल। आप कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। यहां ऑप्शन होती है प्रोग्राम एंड फीचर्स। तो देखिए ये आपके कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रोग्राम्स होंगे इंस्टॉल हैं, उन सभी का डेटा आ गया। तो इसमें से आपने इसको जैसे आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 1 मंथ आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर
कि लेटेस्ट कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए हैं। जैसे ये 8 मई को हुआ है, 28 अप्रैल को हुआ है, तो क्या आपने किया इसको इंस्टॉल या अपडेट किया, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए हैं, तो इसका एक बार आपने चेक करना है अपने सिस्टम में कुछ अनवांटेड तो नहीं आ गया जो आपने किया ही नहीं है। और अगर कोई अनवांटेड आ गया, उसका क्या होता है, जो अनवांटेड एप्लीकेशंस होती हैं वो आपके सिस्टम में की लॉगर इंस्टॉल कर देती हैं। की लॉगर, इसको अगर आप थोड़ा सा नेट के ऊपर भी इसका पढ़ेंगे, की लॉगर क्या करता है, जो भी आप टाइप करते हैं आपके कीबोर्ड के थ्रू, उस सभी की एक कॉपी बनाकर हैकर को सेंड करता रहता है आफ्टर 15 मिनट, जो भी उन्होंने टाइमिंग रखी होती है। तो उसी में से वो फिर कॉम्बिनेशन बनाते हैं भी, इसमें से ईमेल आईडी कौन सी थी, पासवर्ड कौन सा टाइप किया है, तो सभी की स्टॉक्स जो होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हैकर के पास जाती है की लॉगर के थ्रू। नेक्स्ट है मेंटेन बैकअप। सिस्टम का आप टाइम टू टाइम बैकअप लेते रहें। नेक्स्ट, चेक सिक्योरिटी सेटिंग। सिक्योरिटी चेकिंग देखें कि फायरवॉल आपकी ऑन है, आपकी जो विंडो में होता है विंडो फायरवॉल्स वो ऑन है। नेक्स्ट, नेवर गिव योर फुल नेम और एड्रेस टू स्ट्रेंजर्स। इंटरनेट में काफी सारे लोग हमसे हमारी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जिससे कि क्या करते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं कि मोस्टली हम क्या करते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रख दिया, मोबाइल नंबर के 5 डिजिट, अपने नेम के 5 डिजिट, इसको पासवर्ड बना दिया। तो इससे वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। इससे आप कम अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रेंजर से शेयर ना करें। लर्न मोर अबाउट इंटरनेट प्राइवेसी। डोंट यूज द सेम पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डोंट यूज द सेम पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। मोस्टली हम क्या करते हैं, एक जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाया, उसी पासवर्ड को, उसी ईमेल आईडी और सेम पासवर्ड को हम सभी जहां जहां भी लॉगिन अकाउंट क्रिएट करते हैं वहीं पर उसी को सेव कर देते हैं। अब इसमें मैं एक आपको देता हूं एग्जांपल। कुछ वेबसाइट्स लॉन्च होती है कुछ टाइम के लिए जो कहती हैं कि ये स्पेसिफिक सेल लगी हुई है, इसके लिए आप यहाँ पर लॉगिन करिए, आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ये रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो जो इंटरनेट सेवी नहीं है मोस्टली क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी भी एंटर कर देते हैं और साथ में पासवर्ड भी एंटर करके सबमिट कर दिया भी अब ये रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड क्या मिलेगा, आपकी जो इन्फो सेम ईमेल आईडी पासवर्ड था वो हैकर के पास चला गया। तो इसलिए जब भी आप कोई भी अकाउंट नया क्रिएट करें तो उसमें आप ईमेल आईडी वाला ही सेम पासवर्ड यूज ना करें, कुछ भी अनदर कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट करके नेक्स्ट जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स हों। ईमेल आईडी आपकी सेम होगी, पासवर्ड्स आपके डिफरेंट रहने चाहिए। नेक्स्ट, ट्रीट all unsolicited emails with caution and never click on link in this email to visit unknown websites। मोस्टली अगर हमें लगता है कि कोई अननोन सोर्स से हमें ईमेल आई है तो उसको हमें ओपन करने की जरूरत भी नहीं है, उसको ओपन ना करें। एक रैंसमवेयर अभी वायरस आया था जो क्या करता था, जैसे आप क्लिक करेंगे अटैचमेंट होती थी, अटैचमेंट पे आप क्लिक करते थे, वो EXE फाइल आपकी सभी फाइल्स को इनक्रिप्टेड कर देती थी, जिससे कि आपके जो भी डेटा है पूरा का पूरा सिस्टम का डेटा जो था वो किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज होता था। फिर उसके बाद वो आपसे कुछ डिमांड करते थे भी इतने डॉलर दो तब आपको हम एक की देंगे जिससे कि आप उसको डिक्रिप्ट कर सकें। तो इसलिए अननोन सोर्स से जो भी ईमेल आए उसको आप ओपन ना करें। अटैचमेंट को ओपन करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश भी ना करें भी कोई अटैचमेंट आई है हम इसको डाउनलोड कर लें। Don't use free software unless you know it reputed and safe। तो जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स हैं उसकी भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कुछ वेबसाइट्स हैं जो रिप्यूटेड हैं, जैसे फाइल हिप्पो, जिससे कि हम अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल पे ऊपर जाकर सर्च करना भी, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आपने गूगल पे सर्च मारा, ये तुरंत डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल कर लिया। ऐसे नहीं, कुछ रिप्यूटेड वेबसाइट्स रखिए कि ये वाली 4-5 वेबसाइट्स हैं जो रिप्यूटेड है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी मेंशन है, तो जहां से हमें ऑथेंटिक ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनके अंदर कुछ की लॉगर इंस्टॉल हो जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है कोई और इंस्टॉल कर ले। ठीक है, बी केयरफुल नॉट टू शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड अदर वेबसाइट दैट डोंट यूज इनक्रिप्शन टू सिक्योर द इंफॉर्मेशन यू पब्लिश।
सोशल मीडिया के ऊपर भी क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है ये हमें पता होना चाहिए। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज, हमारी टाइमलाइंस, हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी फुल इंफॉर्मेशंस भी कई बारी क्रिमिनल्स के लिए बहुत ही इजी सोर्स होता है कि टारगेट करने का भी। उनको पूरी इंफॉर्मेशन भी ना हम शेयर करें भी। नेक्स्ट, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, कई बार जैसे आता है ना कि मिनिमम 10 कैरेक्टर्स का हो, जिसमें कि अल्फाबेट लोअर केस के भी हो, अपर केस के भी हो, न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो, तो हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए। सिंपल नहीं रखना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। फायरवॉल ऑन रखें कंप्यूटर की, लैपटॉप की। नेक्स्ट, बी सोशल मीडिया सेवी। अगर हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें उसको सिक्योर कैसे रखना है, हमारी टाइमलाइन के ऊपर कोई भी शेयर ना कर सके, तो वो सेटिंग्स भी हमें पता होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई भी नया सोशल मीडिया आया और उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, रिकवरी की ईमेल नहीं हमने रखी या रिकवरी के लिए कोई मोबाइल नंबर नहीं रखा, और जब हम पासवर्ड भूल गए तो हमें पता ही नहीं अभी अब इसको कैसे एक्सेस करना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। सोशल मीडिया के बारे में पहले देखना उसका रिकवर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए रिकवरी हमें आईडी कौन सी देनी है, उसमें सेटिंग्स में हमारी वॉल के ऊपर कोई शेयर ना कर सके, कौन सी सेटिंग्स करनी है। तो हर सोशल मीडिया की अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं, उसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, जब भी आप सिस्टम के ऊपर अपना कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर आप जीमेल आईडी या कोई रजिस्ट्रेशन लॉगिन का फॉर्म ओपन करते हैं, तो आपको देखा होगा कि एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा होता है सेव पासवर्ड, सेव और नेवर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सेव के ऊपर ही क्लिक करते हैं। देखिए, आपने जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक किया, ये इंफॉर्मेशन आपकी ब्राउजर में जाकर सेव हो जाती है, ये वाली इंफॉर्मेशन आपके ब्राउजर में। तो इसकी मैं एक बार आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। देखिए, यहां पर मैंने अगर कुछ डाला तो सेव पासवर्ड की ऑप्शन आएगी। जैसे मैंने सेव कर दिया तो देखिए सेटिंग्स में जाकर देखिए सेटिंग में गया, यहां पर ऑप्शन होगी पासवर्ड्स की। तो जैसे मैंने पासवर्ड्स के ऊपर क्लिक किया तो अब मेरे सिस्टम में मोर देन 137 वेबसाइटों को कोई एक्सेस करता है, तो मेरे वो जितने भी पासवर्ड्स है वो यहां से चेक कर सकता है। हर वेबसाइट का यहां पर पासवर्ड सेव है। तो इसी पासवर्ड को कोई भी पर्सन असेस कर सकता है इस पासवर्ड्स का। तो यहाँ पर कुछ टाइम में अभी काफी पासवर्ड्स हैं, तो इसलिए वेट कर रहे ले रहा है ये सिस्टम। तो इसमें सभी पासवर्ड जो है वो शो हो जाएंगे मेरे पास कि इस ईमेल आईडी का मैंने ये पासवर्ड रखा था, इसको मैंने ये रखा था, इसका ये रखा था। ठीक है, तो ये वाली चीज मैंने अपने डिपार्टमेंट में भी देखी भी। हमारे यहाँ जैसे कंप्यूटर्स होते हैं तो उसमें मोस्टली क्या करते हैं, आप आते हैं जैसे कोई भी सेस करता है वहां पर टीचर, तो उसको सेस करने के बाद आप उसको सेव करके आप लॉग आउट कर जाते हैं, या आप वहीं पर अपना किसी का, ये देखिए अभी ये सारे पासवर्ड शो हो गए मेरे पास इस स्क्रीन में। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं, बट हमारा जो पासवर्ड्स है वो हमने चाहे लॉग आउट कर दिया, अगर सेव कर दिया तो वहां पर उसका सेस रहता ही रहता है। तो उसको कोई भी सेस कर सकता है आकर वहां पर। तो अगर उस अकाउंट से कोई ऐसी चीज एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो उसी का नाम आएगा भी जिसके अकाउंट के ऊपर वो ईमेल आईडी क्रिएट थी, जिसके ईमेल आईडी को क्रिएट किया होता जिसके नेम पर थी। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि हम जहां भी बैठे सिस्टम पर एक तो सेव के ऊपर क्लिक ना करें। अगर कर दिया है, बाय मिस्टेक हमने क्लिक कर दिया है, तो उसको सेटिंग्स में जाकर पासवर्ड्स में जाएंगे, यहां पर जाके हमने उसको डिलीट करना है। कोई भी अगर हमने अकाउंट क्रिएट ऐसे कर दिया बाय मिस्टेक, या कैफे में गए हैं या किसी अननोन पर्सन के लैपटॉप पे हमने अपना अकाउंट एक्सेस किया है, तो उसको वहां से डिलीट जरूर कर दें। नहीं तो आपको अपना पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है, आपने अपना पासवर्ड ऑलरेडी किसी को दे दिया।
की लॉगर के बारे में भी मैंने अभी आपको जैसे बताया, अभी की लॉगर्स क्या करते हैं, आपकी जितनी भी स्टॉक्स होती हैं कीबोर्ड के ऊपर आप प्रेस करते हैं, उन सभी को वो कॉपी करके स्पेसिफिक जो भी क्रिमिनल ने अपनी ईमेल आईडी सॉफ्टवेयर में रखी होती है उसको वो सेंड करता रहता है कुछ कुछ टाइम के बाद। तो कंक्लूजन यही है, अभी साइबर इंटरनेट टूल्स को आप सिक्योरली यूज करें, अपनी इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर ना करें, पासवर्ड्स को किसी भी ब्राउजर में सेव ना रखें, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप शेयर ना करें। एनी हाउ अगर आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी हो भी जाती है तो आप इस डोमेन के ऊपर cybercrime.gov.in इसको आप नोट कर सकते हैं। इस वेबसाइट्स के ऊपर आप अपने जो भी केस है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक नेशनल लेवल का एक पोर्टल बना हुआ है cybercrime.gov.in। थैंक्स फॉर पेशेंस, भी आपने सुना। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। So very informative lecture, sir. थैंक यू मैम। I think some person raised their hand. हाँ जी, अगर किसी का कुछ है क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट। जी सर, एक क्वेश्चन है हमारा। हाँ जैसे जी। सर फेसबुक पर हमारी कोई भी वीडियो होती है ना, कोई भी डाटा होता है, पोस्ट होती है, तो उसको ना कोई दूसरा पर्सन उसको ब्लॉक कर देता है। हम वीडियो हमारी होती है, कॉपीराइट बोल दे देता है, तो वो ऐसे उसमें सर हम। हाँ जी। ऐसे ऐसे होता है जी, कॉपीराइट अगर आप यूट्यूब पे फेसबुक पे आप कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हो और उसके बैकग्राउंड में आपने म्यूजिक दिया हुआ है जिसका ऑलरेडी किसी के पास कॉपीराइट है, तो वो जो भी सोशल मीडिया है वो ऑटोमेटिक उसको कॉपीराइट के अंदर ले लेता है। ये एक वो पर्सन कोई नहीं करता, ये अंडर एआई एक सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें कि वो बता देता है कि ये कॉपीराइट इसका है। बट अगर आप उसको करते हो कि ये हमने किसी का कॉपीराइट का म्यूजिक नहीं लिया, आप उसके ऊपर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहें तो उसको अनब्लॉक कर देता है, ब्लॉक नहीं रखता फिर उसको। सर पता क्या है, हमारा को फेसबुक था ना, वो फेक आईडी थी, फेक पेज था, तो वो लोगों पर क्राइम करते थे, दूसरों की वीडियो पर ब्लॉक कर देते थे। तो फेसबुक समझता था कि वो उनका प्रोडक्ट है, वो उनकी वीडियो है अच्छा ना। तो मैडम, मैं मुझे वही कह बहुत रही, प्रॉब्लम आई थी इसकी। इसके लिए ना सबसे अच्छा है जो मैंने अभी लास्ट में एक वेबसाइट बताई है ना, दिस वन, हाँ जी। ये जो अभी मैंने वेबसाइट बताई है cybercrime.gov.in, इसके ऊपर हमें उसका पूरा एक प्रेजेंटेशन बनाकर भी ये वाला फेसबुक पेज है उसका यूआरएल मेंशन करना है, क्योंकि हमें अपना कि इस यूआरएल का जो भी फेसबुक का वो यूआरएल है, इसने हमारा एक फेक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो वो उसके ऊपर फिर वो एक्शन लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Are you continuing with PDF file operations? ओके, यस मैम। Yeah. हाँ जी, नेक्स्ट हमारी जो प्रेजेंटेशन है पीडीएफ फाइल्स के ऊपर, डॉट पीडीएफ फाइल फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म जिसकी पीडीएफ। तो फर्स्ट तो है अभी इसको क्रिएट कैसे करना है पीडीएफ फाइल को। पीडीएफ फाइल्स को क्रिएट करने के लिए हम पीपीटी में भी प्रेजेंटेशन जब डिजाइन करते हैं या एमएस वर्ड्स के अंदर भी इसको जस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी, अगर आपने लास्ट क्लास में हुई है कामनी मैडम की जिसमें उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में आपको काफी डिटेल से अच्छे से बताया है, तो उसी को आप यूज कर सकते हैं पीडीएफ फाइल क्रिएट करने के लिए। इसमें जस्ट आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेव एज। देखिए सेव एज में यहां पर आप फाइल का नेम देंगे, जैसे मैंने यहां पर नाम दिया
BMKC। तो यहाँ पर हमें एक्सटेंशन उसकी देखनी होती है। अभी एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो होती है वो DOC होती है MS वर्ड की फाइल्स की, डॉट डॉक्स। तो हमें यहाँ पर करना होता है डॉट PDF एक्सटेंशन टाइप। ठीक है, इसको करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब ये PDF फाइल मेरी सेव होगी डेस्कटॉप के ऊपर। ये देखिए अभी इसकी लोकेशन, जस्ट वेट। डेस्कटॉप पे मैंने की है। वो तो देखिए। ये देखिए अभी ये PDF फाइल बन गई। फर्स्ट तो था हाउ टू क्रिएट PDF फाइल्स, तो उसके लिए जस्ट आपको एक्सटेंशन चेंज करनी है। अब ये PDF फाइल बन गई। अब इसका बेनिफिट क्या है PDF फाइल का और वर्ल्ड फाइल से इसका अगर हम कंपैरिजन करें, जो वर्ल्ड फाइल है अगर आपने उस पर कुछ पंजाबी में लिखा है या हिंदी में लिखा है तो उसका फॉन्ट का इशू रहता है कि उसमें जो फॉन्ट्स यूज किए थे आपको वो फॉन्ट सेम शेयर करने होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आपने PDF फाइल क्रिएट की हुई है तो PDF फाइल में आपको फॉन्ट्स की शेयर करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे भी लिखा है इसके अंदर उसको सेव किया है, उसमें आप अनदर किसी भी पोर्टेबल, उसका नाम ही है PDF पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट। तो आप ये पोर्टेबल फाइल्स है, इसको आप पेन ड्राइव में या ईमेल के थ्रू किसी को भी शेयर कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट का कोई इशू नहीं आएगा, सेटिंग का कोई इशू नहीं आएगा। एक बार जो आपकी PDF फाइल में आ गई वो अनदर किसी में भी वैसे ही ओपन होगी। और मोस्टली वर्ल्ड फाइल और प्रेजेंटेशन फाइल्स का ये रहता है कि या तो वर्जन्स का इशू आ गया, फॉन्ट का इशू आ जाता है, थर्ड उसमें आता है कि कई बार करप्टेड भी हो जाती है कुछ वायरस के थ्रू। PDF फाइल मोस्टली सेफ रहती है, इसमें डेटा करप्ट इजिली नहीं होता। अब इसके अंदर जो ऑपरेशंस हैं PDF फाइल्स के अंदर जो यूज करते हैं, एक तो होता है कंप्रेस PDF फाइल। जब भी आप कोई फॉर्म अपलोड करते हो तो उसमें होता है कि आपकी फाइल बन गई 2 MB की, बट आपको चाहिए थी 100 KB या 200 KB की, तो उसके लिए आपने उसको कंप्रेस करना होता है। सेकंड है PDF कन्वर्टर। अगर तो PDF जो है वो वर्ड से या PPT से बनी हुई है तो वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में या PPT फाइल में। अगर तो वो इमेज को आपने PDF में कन्वर्ट किया है फिर वो इजिली कन्वर्ट नहीं होती PDF में। स्प्लिट पीडीएफ में क्या होता है कि अगर आपकी जो फाइल है उसके अंदर आपने 10 पेजेस हैं, आप चाहते हैं कि आपने जस्ट 5 पेजेस की एक PDF क्रिएट करनी है, या आपको लगता है कि इस बुक में से आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स को ही स्टूडेंट्स को शेयर करना है, तो उसके लिए आप स्प्लिट PDF फंक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्ज PDF। अब मर्ज PDF में है, आपने देखा कि 2 PDFs हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसके अंदर एक के अंदर अच्छे नोट्स बने हैं, सेकंड के अंदर भी अच्छे नोट्स हैं, और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को एक ही PDF शेयर करें, तो उसके लिए आप यूज करते हैं मर्ज PDF। 2 PDFs को कंबाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट PDF। प्रोटेक्ट PDF हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा इनकम टैक्स की भी जब आप फाइल करते हैं फिल, तो उसके बाद आपको एक PDF फाइल आती है, उसमें आपको एक पासवर्ड एंटर करना होता है। ठीक है ना, आप पासवर्ड एंटर करते हैं तभी वो ओपन होती है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम कह सकते हैं। तो ऐसी कुछ हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हमने डिपार्टमेंटल शेयर करना है या स्टूडेंट्स में शेयर करना है, बट वो ही असेस कर सके जिसके पास पासवर्ड हो स्पेसिफिक, तो उसके लिए हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट PDF। तो इसके लिए ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल्स हैं जिसमें smallpdf.com वेबसाइट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, pdfcompressor.com है, ilovepdf.com है। तो ये 3 जो सर्च की हैं मैंने भी, ये 3 वेबसाइट्स हैं जो हमें फैसिलिटीज ऐसी प्रोवाइड करती हैं जिसमें हमें कुछ पे भी नहीं करना पड़ता, जस्ट हमें अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं अभी आपको एक फाइल, एक वेबसाइट में ऑपरेशन परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ।
जैसे आप smallpdf.com एंटर करेंगे आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी के अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए अभी ये सारे फंक्शंस ओपन हो गए हैं। कंप्रेस पीडीएफ, मैंने कंप्रेस पीडीएफ के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी फाइल को करना है कंप्रेस करना है। अभी मेरे पास बीसीए सिलेबस, इसका साइज देखते हैं। इसका साइज है 902 KB। तो इसको कंप्रेस करना है, इसको क्लिक किया, ओपन किया। ये देखिए अभी इसने क्या किया, इसको कंप्रेस करके 903 KB की फाइल थी उसको 542 KB का कर दिया, यानी कि 40% उसको लेस कर दिया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, ये डाउनलोड स्टार्टिंग हो जाएगी इस पे। ठीक है जी, ये तो था कंप्रेस करने के लिए पीडीएफ फाइल को। इससे उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट पीडीएफ। स्प्लिट पीडीएफ में फर्स्ट बीसीए सिलेबस मैंने अभी कॉपी किया। अब मैंने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करनी है पेजेस। एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया। जैसे एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया तो इसने बता दिया कि मेरी पीडीएफ फाइल के अंदर जितने भी पेजेस, टोटल पेजेस ये डिस्प्ले कर देगा। देखिए अभी यहाँ पर ये कर दिया। टोटल 55 पेजेस हैं इसके अंदर, इस पीडीएफ फाइल पे। सो आई वांट कि मुझे जस्ट फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पेज ही चाहिए। या फर्स्ट सेमेस्टर का मैं चाहता हूं कि पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी ने सिलेबस शेयर किया है, बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है और मुझे पूरा फर्स्ट सेमेस्टर है उसी का सिलेबस जस्ट डाउनलोड करना है। तो मैं फर्स्ट के ऊपर ही क्लिक करूंगा, जो भी मुझे पेजेस पता है। देखिए इसमें बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर स्प्लिट पे जाएंगे, यहाँ पर आप इसकी रेंज भी दे सकते हैं। ये देखिए स्प्लिट रेंज, कितने से कितने पेजेस आपको चाहिए। 4, जैसे 4-5, कॉमा डालकर 7 to 9। तो जितने भी आपको पेजेस चाहिए जस्ट आपने यहां पर एंटर करने हैं रेंज में, 1 2 3। ओके, एक्सट्रैक्ट। देखिए अब इसने क्या किया, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा तो ये ओनली 3 पेजेस जो थे वो डाउनलोड हो जाएंगे इसमें से। अब ये पीडीएफ फाइल जनरेट हो चुकी है। नेक्स्ट है मर्ज पीडीएफ। मर्जिंग में क्या है कि 2 डिफरेंट पीडीएफ फाइल्स को कंबाइन करके सिंपल 1 पीडीएफ फाइल क्रिएट करनी है हमने। देखिए अभी हमने 2 पीडीएफ फाइल्स सिलेक्ट की थी, मर्ज किया। ये देखिए अब कौन सी हमें चाहिए, ये पहले चाहिए या ये बाद में चाहिए। जो भी हमें पहले, उसको आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और करने के बाद यहां से आप मर्ज पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको मर्ज कर देगा। अब टोटल 55 पेज थे फर्स्ट वाली में और सेकंड में सिंगल 1 पेज था, तो उसको इसने कंबाइन करके टोटल 56 पेज कर दी। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो कई बार होता है कि हमने अगर ईमेल भी किसी को करनी है तो अलग अलग पीडीएफ फाइल्स को अगर हम चाहते हैं कि मर्ज कर दें, एक में कन्वर्ट कर दें, तो इस टूल के थ्रू आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रोटेक्ट पीडीएफ। प्रोटेक्ट, अगर हम चाहते हैं कि कुछ पासवर्ड हमने यूज करना है ताकि जब भी हम पीडीएफ फाइल को अगर ओपन करना हो तो उसमें हम स्टूडेंट्स को कुछ पासवर्ड भी दें, तो क्लिक किया, ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया सिंपल ए। अब इसको डाउनलोड किया, देखिए अब जैसे मैंने इसको ओपन किया तो इसने कहा कि अब पासवर्ड एंटर करें। मैंने अगर ये अभी रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर रहा हूं तो इनकरेक्ट पासवर्ड, तो इसके ऊपर मैंने अगर पासवर्ड एंटर किया तो इसने मुझे वेब पे जो भी पीडीएफ फाइल थी वो ओपन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम पासवर्ड से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को। तो ये बेसिक्स ऑपरेशंस थे जो पीडीएफ फाइल के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टूल्स इसी में अवेलेबल्स हैं, जो भी हम चाहें यहाँ से टूल यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द टूल्स, पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ रोटेटर, पीडीएफ टू वर्ड। हाँ जी, एनी डाउट, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? Sir, Professor Neeraj Virdi is saying that I want to ask that sometimes we use online software to create PDF file or to compress the PDF file. Are those online software authentic? I think you have already explained that, but tell once more so that clarity is there. हाँ जी, जो ऑथेंटिक्स हैं वो जैसे अभी पीडीएफ के तो मैंने अभी बताए, अभी ऑथेंटिक ये 3 वेबसाइट्स हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन का भी हमें पता है अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स से अभी रन कर रही हैं, तो ये ऑथेंटिक्स हैं। Okay, sir. Okay. If anyone other is having any doubt, he or she can ask. Sir, there are no doubts. I think. Thank you very much, sir, वेलकम मैम। for sharing your profound knowledge about cyber security and PDF file operations in such an elaborative manner. And I think we all will never make mistakes saving our passwords and getting into problems and then referring to some persons that please solve our problems. For the last 5 days, all of us have witnessed some of the absorbing and stimulating sessions of this FTP. I thank all the resource persons for beautifully explaining the intricacies of ICT tools. I thank all the participants for their overwhelming response. Encouraged by the participants' response, I think we should organize more of such faculty development programs. Our college principal, Dr. Baljit Singh, is extremely occupied, but he has sent his heartiest wishes for all of us. He has specially thanked all the resource persons and organizing team. Now I would like to call upon our IQAC coordinator, Professor Kamar Kulwant Singh, to propose a vote of thanks. Professor Kamar Kulwant Singh. Thank you, Madam Janki. I hope all the participants must have acquired significant knowledge from this informative FTP organized jointly by IQAC and Department of Computer Science and Applications. My sincere thanks to Dr. Ajay Datta, Professor Harpreet Kaur, and Professor Kamini for their wonderful presentations and cooperation. I wish to congratulate Dr. Janki Agarwal for organizing this excellent and productive FDP.
Finally, I thank our principal, Dr. Baljeet Singh, who gave us opportunity to organize this first ever collaborative FDP. I wish many more fruitful events in future under his leadership. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Now there is an important announcement that certificates will be emailed to the participants within 15 days. I want to share a quote by Frank Herbert. There's no real ending. It's just the place where you stop the story. So we'll not end up here. We will continuously make the efforts to organize more of the FDPs. I wish all the best to all the knowledgeable knowledge seekers to experience the wonderful journey of faculty development programs. Thank you once again. Thank you, one and all. Thank you, Janki ma'am. Thank you, sir, Ajay sir, for knowledgeable lectures for FDP. अजय सर प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज. ओके मैडम, अभी कर रहा हूँ. ओके सर, थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, one and all. थैंक यू मैम. बाय. टेक केयर मैम. Thank you, ma'am. Thank you, sir.